Hello everyone. So let's solve together the MCQ questions from the chapter Heights and Distances. The first question, a lighthouse is 80-meter high. So let's draw it part by part. Okay, so this is A, this is B, this is our lighthouse which is 80-meter high. The angle of elevation from its top, the angle of elevation of its top from a point 80-meter away from its foot. So we will focus on this point. This is 80-meter away from its foot. This is a lighthouse. लाइट हाउस का ये दिस द टॉप पोर्शन और ये लाइट हाउस का डाउन पोर्शन. सो दिस इज द फुट ऑफ द लाइट हाउस. दिस इज द फुट ऑफ द लाइट हाउस. सो 80 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट मीन्स यहाँ से 80 मीटर एट दिस पॉइंट. Okay, so don't get confused. See, the height is also 80 meters. The point which is away from the foot is also 80 meter. So let's name it C. And from this point, the angle of elevation. So see, I'll just explain it in 2 to 3 lines. That what is angle of elevation, and the another one is the angle of depression. Okay, so see, I'll explain it in Hindi as well as English, so both the type of audience can be comfortable. See, the exam will be in English obviously, but we must understand it in the language which we feel as more comfortable. So I'll explain it in both the languages. First in English. So see, the first one is angle of elevation. To understand both the angles, we need to first understand what is line of sight. Okay, line of sight. If we are standing here at this point and we are seeing horizontally, okay, means straight. Like suppose this point is my eye and I'm looking straight. So in this direction, so this line is called the line of sight. Now from this line, now if I see upwards, means I'm just changing the direction of my eye. If I'm looking upwards, means I'm looking like this. So this becomes my LOS, that is line of sight. And this is the line when I'm seeing upwards, okay, up. And so this angle, the angle between my line of sight and the upward direction, this angle is called angle of elevation. So I'll just write it angle of elevation, that is AOE. So this angle is AOE, that is angle of elevation. So obviously, when I'm looking downwards, okay, from this point when I'm looking downwards, the angles made by the line of sight and the downward direction, this angle is called the angle of depression, that is AOD. AOD. Okay, see, in text, nowhere it is written regarding AOE or AOD or LOS. This is just a terminology used by me. So if you're not feeling comfortable with what I have written here, please ignore. Just pronounce it as angle of elevation or angle of depression or line of sight. Now I'll explain it in Hindi. देखिए ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ और मैं सीधा देख रहा हूँ, मीन्स कि मैं यहाँ से सीधा इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. ये वाले लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. अब यहाँ से अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, मतलब यहीं से मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ ऐसे, तो इस लाइन के बीच में जो मैं ऊपर देख रहा हूँ और इस लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. और जब इस यहाँ पे खड़े होके जब मैं नीचे के साइड देख रहा हूँ, मतलब मेरी नज़र नीचे की तरफ है, तो ये जो एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट और नीचे की तरफ देखने वाले लाइन के बीच में, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन.
तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था जो कि मैंने दूसरे वीडियो में भी डाल रखा है, सो आप डिटेल में वहाँ देख सकते हैं। सिंस ये एक प्रैक्टिस वीडियो है, रिवीजन वीडियो है, इसलिए मैंने और ज़्यादा डिस्कशन इसमें नहीं किया है। तो मैं आगे बढ़ूँगा। तो लैंग्वेज देखते हैं यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप। तो ये लैंग्वेज में ध्यान देना है, ऑफ इट्स टॉप, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन। सो देखिए बी सी बन जाता है लाइन ऑफ साइट, और ऊपर देख रहे हैं यानी कि ये सी से लेके ए तक ये हमारा बन जाएगा, जब मैं ऊपर देखूंगा अपर अपर डायरेक्शन में, और अपर डायरेक्शन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है यानी कि ये हम बन जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि हमारे एग्जाम्पल पे थीटा ले सकते हैं। लेट एंगल ऑफ एलिवेशन बी, सॉरी, थीटा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस डायरेक्ट सोल्यूशन भी कर सकते हैं, बट मैं एक क्वेश्चन डिटेल में दिखा दे रहा हूँ, और आगे में जैसे एमसीक्यू करते हैं, विल जस्ट डू लाइक दैट ओनली। तो लेट एंगल ऑफ एलिवेशन बी थीटा। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, एंगल के ठीक सामने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में, एक वीडियो जो मैंने डाला हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज इन 30 मिनट्स, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, द साइड इन फ्रंट ऑफ थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके, देन तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री यहाँ पे है। क्यों 90 डिग्री यहाँ है? देखिए क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट लाइट हाउस बोला है, तो अ लाइट हाउस इज ऑलवेज स्ट्रेट, और इसका हाइट देखते हैं, या फिर परपेंडिकुलर होता है, ये लाइट हाउस सीधा होता है इसीलिए। और ये दिस इज आवर बेस, दिस इज आवर परपेंडिकुलर, राइट। सो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। सो पी बी, तो अगर पी और बी को देखें तो एक ही एंगल याद आता है, जो कि है tan थीटा, पी बाई बी, विच इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, राइट, विच इज इक्वल टू 80 मीटर बाई 80 मीटर्स। सो मीटर मीटर गया, 80 चला गया, आंसर इज 1, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका क्या मतलब है कि थीटा, मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, आई जस्ट राइट इट डाउन, फॉर what value of theta will tan theta be 1। इसका ये मतलब होता है कि थीटा के कौन सा वैल्यू पे, या थीटा में कौन सा ऐसा वैल्यू मैं लिखूंगा कि tan ऑफ वो वाला वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब मान लीजिए 30 लिखूं या 45 लिखूं या 60 लिखूं या 0 लिखूं या 90 लिखूं, क्या लिखूं, tan 0 लिखूं, tan 45 लिखूं, tan 30 लिखूं, या tan 60 या tan 90, कौन सा ऐसा वैल्यू लिखूं कि आंसर मेरा 1 आ जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री के टेबल से, जो कि मैंने अपने वीडियोस में डाल रखे हैं, अगर आप चार्ट बनाना सीख गए होंगे अभी तक, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे 10 से 20 सेकंड के अंदर हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री के टेबल का चार्ट बना सकते हैं सारे एंगल्स के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको टॉप पे कार्ड शो कर रहा होगा, या फिर आप एडिशनली मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्री इन 30 मिनट्स। मैं उस वीडियो को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू 1 सिर्फ एक ही कंडीशन पे होता है, जो कि है 45 डिग्री। तो tan 45 हमेशा 1 होता है, सो विल टिक द ऑप्शन बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सम नंबर 2 पे। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए साथ में सॉल्व कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर ए सी इज इक्वल टू 6, तो यहीं पे मार्क कर लेते हैं, इट्स बेटर। दिस इज 6 सेंटीमीटर। सी ए बी, देखिए सी ए बी मतलब ये वाला एंगल, ये है 30 डिग्रीज। द लेंथ ऑफ बी सी इज, सो बी सी मतलब ये पूछ रहा है, तो इसको x सेंटीमीटर ले लीजिए या फिर h सेंटीमीटर ले लीजिए, जो आपकी मर्जी। तो रूल के हिसाब से 30 के सामने वाला, लाइक इस एंगल के सामने वाला जो साइड है, दैट इज परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा P। और 90 डिग्री के सामने वाला
हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज, राइट, यानी कि एच। तो पी और एच ये कौन से फॉर्मूला में आता है, ये ध्यान कीजिए। सो दिस कम्स इन साइन, ओके, साइन थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाय hypotenuse. So let's put the value here. Sin 30 degree is equal to perpendicular यानी कि P by hypotenuse that is H. So P की जगह हम लोग लिखते हैं BC और H की जगह हम लोग लिखते हैं AC. BC में लिख देंगे x और AC में लिख देंगे 6 और साइन 30 क्यों, देखिए यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। तो साइन 30 का वैल्यू चार्ट के हिसाब से मैंने बता रखा है कि 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। तो साइन का जर्नी शुरू होता है 0 से, एंड होता है 1 पे, और 30 पे ये आधा जर्नी कंप्लीट कर लेता है। तो ये भी मेरा बनाया हुआ एक स्टोरी था, जो कि आप उस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री इन 30 मिनट्स की वीडियो में आप देख सकते हैं। तो साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2, दैट इज हाफ। तो अब इसे सिंपली इक्वेट कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक्स वहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा 6/2 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिप्रेशन आ गया, देखिए डिप्रेशन का मतलब नीचे देखना है। मतलब अगर ये लाइन ऑफ साइट है तो यहाँ इस पॉइंट से हम नीचे देखेंगे तो ये बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 75 मीटर हाई टावर, ओके सो यहाँ बनाते हैं, ये टावर है। सो दिस इज टावर। अच्छा रुकिए एक मिनट, यहाँ लिख देते हैं, इट्स बेटर टू राइट इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, दिस इज द टावर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 75 मीटर हाई टावर। सो उस टावर में दिस इज द लाइन ऑफ साइट इफ आई एम स्टैंडिंग हियर एट द टॉप। देखिए लिखा हुआ है ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 75 मीटर हाई टावर। तो टावर से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है। तो कोई चीज आप नीचे कब देखेंगे, व्हेन विल लुक डाउन, व्हेन वी आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ समथिंग देन ओनली विल लुक डाउन, राइट। तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। मैं LOS लिख दे रहा हूँ, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यहाँ से, लाइक दिस। तो ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। सो दिस इज 30 डिग्री। ये नीचे देखने वाला लाइन है जिसकी वजह से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना पाएंगे हम लोग। दिस इज द फुट ऑफ द टावर। दिस टावर का हाइट है 75 मीटर्स, मीन्स लाइक दिस। तो चलिए मार्क कर लेते हैं इसको। ये है ए, ये है बी, एंड दिस बिकम्स सी, राइट। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर। सो ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है यहाँ पे, जो कि x सेंटीमीटर, सॉरी x मीटर है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये है 90 डिग्री। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब जो ए बी है ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के होने से ये जो यहाँ पे हम लाइन ऑफ साइट ले रहे हैं ये भी 90 डिग्री बन जा रहा है। दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। और ऑल्टरनेटिवली वी कैन अज्यूम दैट दिस लाइन ऑफ साइट एंड BC, लाइन ऑफ साइट जो है और BC जो है वो पैरेलल लाइन है। और ये एक ट्रांसवर्सल है, AC इज ट्रांसवर्सल। तो AC अगर ट्रांसवर्सल है तो दिस इज 30 डिग्री। सो दिस ऑल्सो बिकम्स 30 डिग्री बाई ऑल्टरनेट एंगल्स। सो देर आर टू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। इधर हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये जो लाइन है ये और BC ये पैरेलल है, और ये 30 डिग्री जो एंगल है, दी एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल जो कि है 30 डिग्री बाई ऑल्टरनेट एंगल्स। एक तो रूल ये हो गया, और दूसरा रूल ये हो गया कि ABC 90 डिग्री है। तो अगर ABC 90 डिग्री है तो ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री होता है। इसमें से अगर ये आधा पार्ट, सॉरी नॉट आधा पार्ट, छोटा पार्ट 30 डिग्री है तो द रिमेनिंग पार्ट बिकम्स 90 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिंस दिस इज अ प्रैक्टिस वीडियो तो मैं थोड़ा
फिर भी मैं स्लो अप्रोच ले रहा हूँ यहाँ पे, बट मैं और आगे लिखूंगा नहीं, आई जस्ट लाइक कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल. तो इफ दिस इज 30, ये हो गया 60 डिग्रीज. सो इन ट्राइंगल ए बी सी, 60 के ठीक सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, मतलब एंगल है तो एंगल के ठीक सामने वाला पी. तो वी हैव पी हियर. और 90 के सामने वाला लाइक दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो अगर ये पी है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये बन गया हमारा बेस. तो वी डोंट नीड हाइपोटेन्यूज, हमें सिर्फ बेस चाहिए. परपेंडिकुलर और बेस चाहिए दोनों. सो पी बाई बी कर सकते हैं हम लोग, पी बाई बी. सो अगेन पी बाई बी किस में होता है? वो होता है tan थीटा में. सो tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, विच इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी, राइट? सो tan थीटा इज इक्वल टू, सो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी जो कि है x, और ए बी जो कि है 75. tan 60 इक्वल टू एक्स बाई 75. tan 60 का वैल्यू अगर आपको याद हो तो होता है √3. तो √3 इज इक्वल टू एक्स बाई 75. सो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 75 √3. ओके, सो सी इज आवर आंसर. तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं. अ लैडर इज 14 मीटर लॉन्ग, रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल. ये हो गया वॉल ए बी, ये हो गया हमारा वॉल. वॉल के अगेंस्ट में एक लैडर है. तो मतलब ये अगर दीवार है तो लैडर कुछ इस तरीके से स्टैंड करेगा वॉल पे. तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये बेस हो गया. इफ द फुट ऑफ द लैडर, ये हो गया लैडर. लेट मी राइट इट डाउन. दिस इज आवर लैडर, दिस इज आवर वॉल. तो लैडर का फुट मतलब ये दिस पोर्शन, मैं पिंक से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सी. तो ये जो पिंक से लिखा हूँ सी, दिस इज आवर फुट पोर्शन. द फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. वॉल जो है ए बी उससे 7 मीटर दूर है, मीन्स दिस इज 7 मीटर. देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, तो अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है. तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट. और ऊपर देखेंगे, एलिवेशन मीन्स ऊपर का होता है. तो ये देखिए ये लाइन जा रहा है ऊपर. तो लाइन ऑफ साइट और ऊपर वाला लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ये हमें पूछा जा रहा है. तो इसको थीटा ले लेते हैं. लैडर का लेंथ ऑलरेडी हमें गिवन है जो कि है 14 मीटर्स. तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं. थीटा के सामने वाला, और ये है हमारा 90 डिग्री. 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है दैट इज ऑलवेज व्हाट? हाइपोटेन्यूज, राइट? सो एच लिख देते हैं. और थीटा के ठीक सामने वाला ए बी, थीटा के सामने वाला ए बी, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर जो कि हम लोगों को इस सम में नहीं चाहिए, वी डोंट नीड इट. सो वी आर लेफ्ट आउट विद बी सी विच इज द बेस. सो एच एंड बी, वी नीड एच एंड बी. तो जस्ट रिकॉल दैट बी और एच कहाँ पे आता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? आता है कॉस थीटा में. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच. बेस बी यानी कि बेस जो कि हो गया बी सी, और एच मतलब हाइपोटेन्यूज जो कि हो गया ए सी. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी यानी कि 7 मीटर डिवाइडेड बाई ए सी जो कि है 14 मीटर, राइट? सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/14 यानी कि हाफ. अब कॉस थीटा का वैल्यू चार्ट के हिसाब से हाफ कब आता है? मीन्स थीटा का कौन से वैल्यू पे कॉस थीटा का कॉस का वैल्यू हाफ आएगा. सो दैट इज जस्ट बिफोर 90 यानी कि 60. सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो देख लेते हैं ऑप्शन. येस वी हैव दैट ऑप्शन एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट. चलिए आगे बढ़ेंगे.
इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर, लेंथ ऑफ द शैडो, अब देखिए अगर हम लोग इस तरीके से खड़े हैं और यहाँ सन है, राइट, तो सन के रेज ऐसे पड़ेंगे, तो अगर हम लोग ऐसे खड़े हैं तो हमारा शैडो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, राइट। सो ये हो गया हमारा शैडो। सो द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर, अगर ये एक टावर है, ये अगर एक टावर है तो इसका शैडो बन रहा है जो कि है √3 टाइम्स देन दैट ऑफ इट्स हाइट। तो अगर टावर का हाइट h मीटर्स है, what will be the height of the shadow? It's already given. The length of the shadow is √3 times than its height. So √3 into √3 गुना, अगर हिंदी में बोले तो √3 गुना या √3 times that of height, height हो गया h. So we have the length of the tower, we have the length of the shadow. और यहाँ पूछ के आ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगेन एलिवेशन देखिए, ऊपर से नीचे एलिवेशन नहीं होता, एलिवेशन होता है नीचे से ऊपर, तो इसको ज्वाइन कर देंगे और ये एंगल के बारे में पूछ रहे हैं। अगर ये पॉइंट पे हम लोग देखेंगे इस लाइन पे और इस लाइन के बीच के एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। सो ये एंगल का वैल्यू पूछा जा रहा है, इसको थीटा ले लेते हैं, इसको नेमिंग कर देंगे, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। टावर का हाइट इज एच, तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज आई हैव रिटन इट हियर। सो दिस इज टावर, थीटा के ठीक सामने वाला दिस इज पी, एंड इसके नीचे वाला दिस इज 90 डिग्री, और थीटा और 90 डिग्री के बीच में जो आता है दैट इज द बेस, सो बी। सो अगेन पी बाई बी मीन्स परपेंडिकुलर एंड बेस, ये सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हो सकता है, दैट इज tan थीटा विच इज इक्वल टू पी बाई बी, पी बाई बी विच इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। ओके, सो लेट्स कंप्लीट इट क्विकली। tan थीटा होता है ए बी की जगह क्या लिखेंगे, टावर का हाइट दैट इज h, एंड शैडो का हाइट दैट इज √3h। बहुत ही ध्यान से देखिए, ये h और ये h कैंसल आउट हो जा रहा है, लुक दिस h गेट्स कैंसल्ड आउट, तो यहाँ बच गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो थीटा के कौन से वैल्यू पे tan थीटा 1/√3 हो जाता है, तो ये होता है 30 डिग्रीज पे, सो थीटा विल बी 30 डिग्री, सो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो विच इज ऑप्शन हियर, या ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 40√3 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, तो अगर इसे काइट मान लेते हैं, ये उड़ रहा है हाइट ऑफ 40√3 मीटर, सो ये हो गया ग्राउंड, ये है हमारा काइट KITE, और इसका जो हाइट है दैट इज 40√3 मीटर अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब देखिए दो टाइप के लाइन होते हैं, ये होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल, राइट। दिस इज वर्टिकल V, दिस इज हॉरिजॉन्टल H, ये सभी को पता होना चाहिए। तो 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है, तो 60 डिग्री कैसे बनाएगा, लाइक दिस ओनली। तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया 40√3। तो चलिए नाम रख देते हैं अब, दिस इज A, दिस पॉइंट इज A, this point is B, this point is C. They are asking the length of the string. Okay, length of the string means they are telling us to find what is AB. String का length क्या है। अब देखिए हम काइट कैसे उड़ाते हैं, लाइक वी आर स्टैंडिंग हियर राइट ऑन द ग्राउंड, और दिस इज द स्ट्रिंग एंड दिस बिकम्स आर काइट, राइट। तो ये इसी स्ट्रक्चर से बना है, ये काइट का हाइट हो गया, दिस इज H, ये ग्राउंड है, और ये हम इस तरीके से, दिस इज द स्ट्रिंग। ओके, तो लेट्स डू इट। 60 के ठीक सामने वाला this becomes P, and we need to find AB.
सो लेट इट बी एक्स मीटर। तो ए बी अगर एक्स मीटर है तो ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला becomes our hypotenuse. So it's better to write P by H. P और H मिलेगा तो we'll obviously write P by H, जो कि होता है for sin theta. P by H. Sin theta is equal to P by H. Sin of 60 degree is equal to P क्या है? P is AC by hypotenuse, that is AB. Sin 60 का वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं यहीं पे, is equal to √3 by 2. AC is given as 40 √3 divided by AB, which is equal to x. So I'm solving it here. ये x यहाँ चला जाता है और 2 ये इसके पास चला जाता है, तो ये बन गया हमारा √3x is equal to 40 into 2, that is 80 into √3. X is equal to 80 √3 divided by √3. Therefore x is equal to 80 meters. So देखिए ऑप्शन कौन सा है? ओके, 6 का ए. If the angle of elevation is 60 degree and distance of the object from the foot of the tower, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये बन गया टावर, ये है ए, ये है बी, ये है टावर. इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज द पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी. तो यहाँ पे बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि बी सी ऑलरेडी गिवन है 10√3 मीटर. देन द हाइट ऑफ द टावर इज, सो दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट ए बी. तो इसको एच ले लेते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू एच मीटर्स, राइट. तो ट्रायंगल एबीसी में क्या होगा? 60 के ठीक सामने वाला जैसे 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और 60 और 90 के बीच में यानी कि 10√3 ये हो गया बेस. सो कौन सा ऐसा टी रेशियो है जिसमें पी और बी दोनों आते हैं? ऑब्वियसली दिस इज आवर tan थीटा. तो यहाँ वैल्यू पी क्या है? ए बी, ए बी, ओके, ए बी, और बेस होता हो गया यहाँ पे बी सी. tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, सो ए बी की जगह लिख देते हैं एच और बी सी की जगह लिख देते हैं 10√3. और tan 60 का वैल्यू होता है √3. तो आई एम कंटिन्यूइंग इट हियर. So √3 is equal to h by 10√3. So cross multiply, this goes upwards. Therefore, h becomes 10√3 into √3. √3 into √3 becomes 3. So we have 10 into √3 means 3. 10 into 3 is equal to 30 meters. So let's look at the option. Okay, we have that. So 7 ka C is the right answer. Let's move ahead. Is equal to 30, right? The top of the broken tree. Okay, this is a very important question. See, the top of the broken tree मीन्स एक ट्री जो कि पहले सीधा था वो टूट चुका है, मीन्स यहाँ से अगर टूट गया है, सो ऑब्वियसली दिस पोर्शन, ओके, दिस पोर्शन विल नॉट स्टैंड एज इट इज. मतलब ये पोर्शन अगर मान लीजिए ट्री यहाँ से कट गया तो ये वाला जो पोर्शन है ये कुछ इस तरीके से गिर जाएगा, राइट. एक बार सोच लीजिए ढंग से. अगर एक ट्री, इतना बड़ा ट्री था और ये बीच से या फिर कहीं से भी अगर ये पोर्शन से टूट गया है, तो ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पोर्शन है ये नीचे गिर जाएगा, मीन्स इस पॉइंट से ही ये पॉइंट ऐसा बन जाएगा. तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं टॉप ऑफ ब्रोकन ट्री
हैज इट स्टॉप टचिंग द ग्राउंड। देखिए यही डायग्राम बनेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द बॉटम। सो लाइक दिस, ये हो गया 10 मीटर, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इफ द एंगल मेड बाय द ब्रोकन पार्ट विद द ग्राउंड, तो ये हो गया ब्रोकन पार्ट जो कि ए सी, और वो ग्राउंड के साथ बना रहा है 30 डिग्रीज। लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट, मतलब दे आर टेलिंग अस टू कैलकुलेट ए सी। ओके, सो ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो इफ यू लुक वेरी केयरफुली, इस ट्रायंगल में दिस इज 90 डिग्री, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज जो कि हम लोगों को निकालना है, और साथ में 30 के सामने वाला ए बी, दिस वन बिकम्स अ परपेंडिकुलर जो कि हमें नहीं चाहिए। सो वी आर लेफ्ट आउट विथ बी। देखिए एच बाई बी भी गलत नहीं होता है, बट इट्स ऑलवेज अप्रोप्रिएट टू राइट बी बाई एच, बिकॉज बी बाई एच स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा, और एच बाई बी करेंगे तो कॉस थीटा का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच विच इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी सी यानी कि हो गया 10, एंड ए सी यानी कि हो गया एक्स। कॉस 30 का वैल्यू इज ऑलवेज √3/2, so √3/2 is equal to 10/x, therefore x is equal to, ये 2 चला गया इधर पे, तो दिस बिकम्स 20, और यहाँ आ गया √3, 20/√3 मीटर, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 20/√3 मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। तो देखिए सबसे पहले तो टावर बना लीजिए, ये हो गया टावर, और टावर का फुट बोल रहा है, तो यहाँ हो गया, ये हो गया 100 मीटर, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ही होता है, ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, तो फुट से यानी कि एसी को ज्वाइन कर दीजिए। ये जो एंगल है दिस इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, दिस इज 100 ऑलरेडी गिवन, so they are telling us to find the height of the tower. Okay, so let's write which one is the tower. Okay, this one is the tower. Tower is what, a b, right? So we need to find the height of the tower, which is h. So again this is 90 degree, 90 और 30 के बीच में जो आ रहा है that is base, और 30 के ठीक सामने which is perpendicular. So we have perpendicular, we have base, p by b कर देंगे अगर, so ये सिर्फ एक ही में पॉसिबल है, that is tan theta. Tan theta, tan 30 is equal to h by 100. So tan 30 is equal to 1 by √3. 1 by √3 is equal to h by 100. So very easy question. So h यहीं रह गया, this 100 goes there, therefore h is equal to 100 by √3. Okay, I just forgot to write meters. It is very important. So 100 by √3 meter is the correct answer. Option number A. So the last question. A ladder makes an angle of 60 degree with the ground. So if this is the ground, ladder is 60 degree when placed against a wall. So this becomes our wall. Let's name it. This is A, this is B. So as I explained in previous question, ladder हमेशा इस तरीके से रहेगा, तो A B C हो गया, ये हो गया ladder, और ये हो गया हमारा wall. A ladder makes an angle of 60 degree with the ground. ग्राउंड से 60 डिग्री यानी कि ये,
when placed against a wall, if the foot of the ladder is 2 meters away from the wall, foot of the ladder यानी कि ये is 2 meter away. Okay, so it's very simple. This is 2 meter away from the wall. Then the length of the ladder is. So they are asking what is AC. Okay, the same process. ये 90 डिग्री 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज और इन दोनों के बीच में दिस इज द बेस. तो बी बाई एच करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. ये सिर्फ एक ही में पॉसिबल है, दैट इज कॉस थीटा. सो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 by h. Cos 60 is 1 by 2. So 1 by 2 is equal to 2 by hypotenuse which is AC, right? और AC becomes AC यहाँ ऊपर चला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 उसके पास चला जाएगा. So 2 into 2 is 4. So AC is 4 meter. Let's look at the option A, B. Okay, we have the option as D, 4 meters. So that's all. I'll bring more and more videos like this, short videos with MCQs or with very few important questions. Stay tuned for the next video. Bye bye.